ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਐਡਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, but let me tell you one thing, my brothers and sisters, it's not about Pastor Bajinder or anybody else, it's all about Jesus। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਬੇਔਲਾਦ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਉਠਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੰਸੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਬਰਡੀਨ ਸਟਰੀਟ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੰਸੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ, B18 7DL। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੌਲੀ ਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਾਮਿਲ, ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਰੀਡ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮ ਕਲਿਆਣ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਸ ਨੂੰ
ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਚਲਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਥੰਮੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਮੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਮੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀਨਸ टीवी ਦੇ ਅੱਗੇ बैठ के तेरी आवाज दास की आवाज सुन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाउन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट जान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमार लोग चंगे हो जान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग बरकत पाउन, शांति पाउन, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिस तरह कल रात प्रभु तुसी ऑक्सफोर्ड दे विच अपने दास नूं बड़ी कुवत दे के बड़ी सामर्थ दे के इस्तेमाल किया, इस तरह खुदावंद हुण भी और अज रात की जो बर्मिंघम च मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में भी अपने दास नूं बड़ी सामर्थ नाल इस्तेमाल करना। दया कृपा रहम करो। इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लाके अखीर तक प्रभु तुहाडे थमे सौंप दिंदे हां। बीनस टीवी नूं बरकत दिओ प्रभु, जिहदे राहीं तेरे सेवकां दी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच रही है प्रभु। इस टीवी उत्ते भी तेरी खास आशीष ते बरकत चाहुंदे हां। जिन्हें लोग इस टाइम प्रभु दुनिया भर दे विच बीनस टीवी उत्ते खुदावंद तेरे दासां दी आवाज़ नूं सुन रहे ने, खुदावंद सब नूं ना बरना आशीष ते बरकत देनी। ये प्रार्थना सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद तैनूं बड़ी बरकत देवे। मैं जांदा जांदा दसदा जावांगा कि जो अज की मीटिंग बर्मिंघम विच हो रही है, उस तो इलावा इन दी मीटिंगां होर भी ने जो कि अपना सारा समा जो अपना कीमती समा वो अपना कढ के तुहाडे लई इस मुल्क दे विच आए ने, साडे लई आए ने। कल अज बर्मिंघम विच मीटिंग होवेगी, कल लैस्टर दे विच उनकी मीटिंग होवेगी। जिन्हें लैस्टर वाले अज प्रोग्राम वेख रहे हैं प्लीज़ कम। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए कितने मीटिंग हो रही है तुसीं मैनूं बाद फोन कर सकते हो। इस तो इलावा वैस्ट ब्रोमिंच दे विच 2 दिन की मीटिंग होगी, वुलवरहैम्पटन दे विच और कवंट्री दे विच मंडे वाले दिन मीटिंग होवेगी। उस तो आखिरी मीटिंग जिहड़ी ओह लंडन दे विच होवेगी। दैन वी बैक इन वुलवरहैम्पटन एंड उस तो दैट्स इट। फिर प्रभु दे कदों मौका तक तो फिर प्रभु ने अपने बंदे नूं वापस लियाउण दा ते फिर तुहाडे नाल मुलाकात होगी। जिन्हें चिर साडे नाल ने लाभ उठाइए, प्रभु दे कोलों बरकत हासिल करिए। प्रभु तुहानूं बड़ी बरकत देवे। एंड लो मैं तुहानूं लै जाना हाँ पास्टर जी दे कोल, जिन्हां ने बड़ियां बरकतां, जिन्हां दे रज़ीए मुर्दे जिंदा हुंदे आ, जिन्हां दे रज़ीए कोड़ी चलदे हैगे आ, जिन्हां दे रज़ीए खुदावंद ने इन्हां नूं इस्तेमाल कीता। गुंगे बोलदे आ, बोले सुणदे आ, तरह तरह के रोगी जिस तरह यीशु मसीह के कोल आउंदे सी, यीशु मसीह उन्होंने आज़ाद करता सी। इस ही तरह खुदावंद यीशु मसीह ने आख्या कि तुसी मैनूं जानोगे और तुसी मेरे इस तो वड्डे वड्डे काम करोगे। जो खुदावंद अज अपने सेवक नूं पास्टर बलजिंदर सिंह नूं इंडिया दे विच पंजाब दे विच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सानूं बड़ी खुशी दी गल है साडे सब दे लई कि अज साडे दरम्यान ने उन्होंने अपना कीमती समा दिता। पास्टर जी असीं तुहाडा स्वागत करदे हां। वी वेलकम यू। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच थैंक यू सो मच। इस तो ज़्यादा वचन सुन तो पहला असीं ये चाहांगे कि तुसी अपनी हिंदी दे विच अपनी गवाही सो कि तुसी प्रभु यीशु मसीह विच क्यों आए, जबकि तुहाडे कोल बड़े इदां दे मनण वाले साधन सीगे। किहड़ी चीज़ सी जिहड़ी तैनूं प्रभु दे कोल खिच के ले आई? प्लीज़ फील फ्री। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ इस बात के लिए कि सच में ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सच में इस जीवित परमेश्वर को कभी भी पसंद करने वाला बंदा नहीं था, लेकिन जब किसी के जीवन में कोई समस्याएं, कोई दुर्घटनाएं किसी के जीवन में आती हैं तो वो व्यक्ति जान जाता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैं हर एक धर्म में, हर एक जात में परमेश्वर को ढूंढता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर की सामर्थ को। मैं कई बार
परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया जिस हिसाब से मुझे मालूम था। मैंने बहुत बार गिड़गिड़ाया, मैंने बहुत बार प्रार्थनाएं किया, लेकिन मेरी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया। ऐसा महसूस होता था शायद मेरी प्रार्थना को कोई अनसुनी कर रहा है। मैं बड़ा टूट चुका था, मैं सुसाइड करने वाला था, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत परेशान करती थी। मैं बार बार सोचता था कि ये चीज मुझे बार बार दिखाई देती है और मैं इसको बोलता हूँ और मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो ये मेरे सामने से जाती नहीं है। वो बड़ा 6 फुट का एक आदमी और 6 फुट की एक औरत, और वो फिर कभी कभी साइज बदल लेते, 42 फुट के हो जाते। तो मैं इन जादू टोनों से बड़ा घिरा हुआ था और मैं बड़ा परेशान था। मैं अपने मम्मी डैडी को मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे मम्मी डैडी भी बोलते थे कि तू छोटा बच्चा नहीं है, तू इतना बड़ा हो चुका है। 25 ईयर में मैंने 25 साल में मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ परिवार को कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। 8वीं क्लास में मुझसे कोई मर्डर हो गया और 10वीं क्लास में फिर मैंने किसी को शूट कर दिया, गोली मार दी। तो उस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया और काफ़ी समय मैं भगवान पर बहुत बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं हर एक धर्म पर, हर एक जात पर, मैं हर एक भाइयों में, हर एक बहनों में मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता था। मैंने कहा मैं इस इंटरेस्ट को मैं और पैदा करना चाहता था कि मैं शायद मैं लोगों को बता सकूं कि परमेश्वर क्या है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मुझ पर कंट्रोल नहीं था, कि मैं जुबान से कुछ अच्छा बोलना चाहता हूं लेकिन गलत हो जाता है। कुछ भी मैं करना चाहता हूं तो मेरी जुबान पर, मेरी सोच पर, मेरी आत्मा पर, मेरी आंखों पर, मेरे हाथ पर कंट्रोल नहीं है। मैं किसी को ज्यादातर मैं पाप कर रहा हूं। लेकिन उसी समय एक रात मुझे बड़ा एक गहरा सपना आया कि आज से कुछ दिन बाद तू मर जाएगा, और मैं बड़ा टूट गया। मैंने कहा शायद मैं मरने वाला हूं। लेकिन उसी समय मैंने बहुत सारे जगह जगह जाकर अपने हाथ दिखाए, बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ कराया, लेकिन वो मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन वो मेरे सामने से मेन बात ये थी कि जब मैंने गोली मारी, जेल में चला गया, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, मेरे याद आ रहा है, एक लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में हर एक धर्मशास्त्र की पुस्तक मिलती थी। तो मैंने देखा कि मेरे डैडी राधा स्वामी को मानते थे, मेरे डैडी हर एक धर्म को मानते थे, तो मैं भी। तो मैंने एक एक किताब उठाकर, मैंने कहा, वो रोज रात को मेरे सामने आती थी। तो वो रोज रात को मेरे सामने जब वो औरत आती थी, वो आदमी आता था, उसके चेहरा बड़ा भयानक था, तो मैं डर जाता था उससे। और मैं उसी समय मैंने एक किताब उठाई, मैंने हर एक धर्म की एक एक बार किताब उठाई, लेकिन वो मेरे सामने से नहीं जा रही है। मैं बड़ा शॉर्ट हो गया। मैंने कहा शायद कोई भगवान मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि शायद मेरी अब कोई सुनने वाला नहीं है, मैं आज सुसाइड कर लूंगा। लेकिन उसी समय मुझे एक व्यक्ति ने एक बाइबल दिया, और वो चोरी के केस में अंदर आया हुआ था। उसने मुझे जब बाइबल दिया, मैंने उसी समय मैंने कहा कि इसको क्या पढ़ना, सारी किताबें मैंने पढ़ के देख लिया है। लेकिन उसी समय जैसे ही उसने मुझे ये दिया, तो उसी समय मैंने जब वचन खोला तो उसमें लिखा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मैं उसको सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे सामने खुल रहा है। लेकिन उसी समय मुझे अखबार में मालूम पड़ा था कि मेरी हरकतों की वजह से, मेरे पाप की वजह से, मेरे ज़्यादा दुख देने की वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। तो मुझे बड़ा शॉक लगा। मैंने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, अब तो मैं ज़िंदगी में जीने का कोई इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने उस दिन सोच लिया पक्का, मैंने एक से प्लान किया अंदर ही कि मैं सुसाइड करूंगा, और मैंने फिनाइल की गोलियां लेकर चाय में मिलवाकर मैं पीना चाहता था। वो सिर्फ 5 मिनट की बात थी कि 5 मिनट में मैंने फिर से एक बाइबल को ऐसे करके ऐसे खोला, तो उसी समय मेरे सामने क्या आया, मैंने खोलते ही देखा कि मेरे सामने एक कलाम आया, और उस कलाम में क्या लिखा है, मेरे सामने वचन आया कि आसमान के खुदा का वचन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा। पास्टर जी, मैं आपसे एक छोटी ब्रेक ते ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि खुदावंद ਕਹਿੰਦਾ कि मैं तेन कभी नहीं ਛੱਡਦਾ। यू नो, हर दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर शख्स ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ खुदावंद ਕਹਿੰਦਾ कि मैं तेन कभी नहीं ਛੱਡਦਾ। ਹੀ ਦਿਸ ਗॉड ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਗਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਡਰਗ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਗਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰਹਿਮ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਸਟਰ जी आप गवाही दे रहे थे, आपने प्लीज आप सुनाएं। हाँ, तो जैसे ही मैंने देखा कि उसमें लिखा तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा, मैंने उसी समय एक अंदर से भर गया, मेरी आत्मा भर गई और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा सच में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन सच में ये मैंने अद्भुत ही देखा और मैं उसको फिर से मेरा अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया, मैं इसको पढ़ूंगा। और उसी समय मैंने एक बात बोली खुदा को, मैंने कहा अगर खुदा तू सच्चा है या तो तू मुझे दर्शन दे तो मैं जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर सच क्या है, कौन परमेश्वर है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा अगर परमेश्वर तू है तो मेरे ऊपर दया कर। और मैं इतनी बात बोल रहा था अगर नहीं है तू तो मुझे एक बहुत बड़ा गुंडा बना दे दुनिया में, मैं बहुत मशहूर होना चाहता हूं, मैं ऐसा बोल रहा था। लेकिन उसी समय क्या हो गया, मैं जैसे ही बाइबल को रखकर सोया 3:55 पर मेरे सामने एक आवाज आई, एकदम से मेरे कान में एक आवाज आई, बोलता है कि उठ तू यहां से बरी हो गया और तू मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। और उसी समय मेरा मन बड़ा भर गया और मैं उसी समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मेरी आत्मा ये गवाही दे रही थी अपने आप ही कि मैं पापी हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। मुझे नहीं पता कि कौन चीज मेरे सामने ऐसा कर रही थी, लेकिन उसी समय मैं जिस बात को देख रहा था कि रात को मुझे एक चीज सोने नहीं देती थी, वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती, जिस कारण से मैं परमेश्वर के नजदीक आया, जिस कारण से मैं किताब को पढ़ता था, किसी धर्मशास्त्र पुस्तक को पढ़ता था। जब मैंने इस धर्मशास्त्र पुस्तक को पढ़ा तो उसी समय मैंने देखा कि वो चीज एकदम नष्ट हो चुकी है मेरे सामने से, वो जिंदगी में मेरे सामने कभी लौट कर नहीं आई। मैंने उस रात देखा कि सच में जीवित परमेश्वर यही है जो मेरी आवाज को सुन रहा है और मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। उसी समय मैं हिल गया। तो मैं आपके सामने एक छोटे से शेयर करना चाहता हूं वचन से कि ताकि आपके जीवन में परमेश्वर उन्नति को लेकर आए, आपकी लाइफ जो है आज से उन्नति करने लगे, आपका बिजनेस उन्नति करने लगे, आपके जीवन में, आपके अगर खून में, आपकी नसों में, अगर शरीर में अगर कहीं कमजोरी है, आज ये कलाम को सुनकर ही आप चंगे हो जाएंगे। आपने बहुत कलाम सुने हैं लेकिन मैं आपको सच्चे खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूं कि वो कलाम क्या बोल रहा है पूरी दुनिया से। वो कलाम ये बताना चाहता है कि अगर आसमान के खुदा का कलाम खुलता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक शाक किए जाते हैं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं। लेकिन कब? जब आसमान के खुदा का कलाम खुलता है यीशु के नाम में, तो उसी समय परमेश्वर चाहता है व्यक्ति से कि उसका दिल खुले। अगर किसी व्यक्ति का दिल खुलता है परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। मैं एक वचन से आपके सामने शेयर करूंगा। मत्ती में लिखा बाइबल में 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, हर एक मनुष्यों के बीच में बैठकर प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं। हमारा मकसद है कि हमें किसी ना किसी से मांगना है, हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है पूरी दुनिया के लोगों से कि तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं। बोलता है आगे लिखा वचन में कि तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसका बेटा उससे चॉकलेट मांगे वो उसको थप्पड़ मारे। लेकिन नहीं, जब आसमान के खुदा से, आसमान के रब से आप मांगते हैं वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये बात बताना चाहता है आप कितने विश्वास से मांगते हैं, आप क्या सोचकर मांगते हैं, कितने स्वार्थ से आप प्रेयर कर रहे हैं, किस बात के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब ही, मांगने का मतलब ही है कि खुदा से बातचीत करना। जब एक बच्चा परमेश्वर से बातचीत करता है
और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का दिल फट जाता है उस व्यक्ति के लिए, उसको देने के लिए। आसमान का खुदा अपने आप नीचे उतर आता है उस व्यक्ति को कुछ देने के लिए। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जैसे वो अपने बाप से मांगता है कि डैडी मैं अगर पास हो गया तो तू मेरे को मोटरसाइकिल देगा, मुझे कार देगा, ऐसे ही अगर आज आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर बोलता है कि आप जिंदगी में जब तक आप जिंदा है, ये जंगल है, लेकिन इस जंगल को पार करने के लिए जैसे इजरायलियों ने जंगल पार करने के लिए इम्तिहान आया लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जंगल के अंदर 22 लाख लोगों में से, इतने सारे लोगों में से सिर्फ थोड़े से लोग, 2 लोगों ने जंगल पार किया। कारण क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फेल हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र आज मैं नहीं जानता 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, लेकिन परमेश्वर एक बात बताना चाहता है कि जैसे एक बच्चे से आप सीख सकते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा मन बालकों के समान हो जाएगा, बोलता है कि तुम मुझसे जो मांगोगे मिल जाएगा। एक बच्चा जाता है और धरती पर लेट जाता है, बोलता है, कहता है पहले मुझे मेरे डैडी मुझे दिला, फिर मैं इस आशीष को मैं पार करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप ये विश्वास लेकर मांग रहे हैं परमेश्वर से कि नहीं, अगर आज आप चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर कोई यीशु मसीह धर्म जात बनाने के लिए नहीं आया, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूं, मैं जाट फैमिली से हूं, मेरा नाम बजिंदर सिंह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मांगने वालों को निराश नहीं करता। लेकिन लोग क्या करते हैं, मांगते तो हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। बोलता है ढूंढते हैं वो पाते नहीं, और खटखटाते हैं उनके लिए खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्वार्थ से मांगते हैं। बाइबल बोलती है इस बात को कि मांगते तो हैं, बोलता है कि खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। कारण हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों की समस्याएं हैं ये। कारण क्यों? क्योंकि वो लोग एक स्वार्थ से मांगते हैं, उनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि आसमान का खुदा क्या चाहता है। आसमान का खुदा ये चाहता है कि बच्चों की तरह आपका मन हो जाए कि रोज परमेश्वर के सामने आप जैसे अपने माँ बाप से बात करते हैं, ऐसे परमेश्वर के सामने उठकर उससे सुबह उठकर बात करें। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, और मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि वो कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा यीशु के नाम में। बोलता है कि अगर आज आप, बोलता है कि ढूंढोगे, कहता है परमेश्वर को पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो बोल रहा है खटखटाओगे खोला जाएगा। ये आपके कोई घर में अगर बेल बजाएगा तभी आप दरवाजा खोलोगे। यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर आज कोई प्रार्थना में रोज सुबह उठकर खटखटाएगा मेरे दरवाजे को, बोलता है कि मैं उसको मिलूंगा, मैं उसको सब कुछ दूंगा। अगर आज आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से कि वो आपके जीवन में काम करे, तो वो बताना चाहता है। बोलता है बाइबल में लिखा, तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो। बोलता है कि अगर आज जैसे एक सब्जी नमक के बिना स्वाद नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर एक नमक बनाकर भेज दिया कि नरक से बचाए जाएं। जब लोगों ने उसका टेस्ट किया, लोगों को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, तो वो लोग जान गए कि सच में यीशु ही वो पावरफुल मैन है, कि वो मैन ऑफ, वो सच में गॉड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आज इस धरती के ऊपर ये लोगों को संकेत देकर गया कि मनुष्य जाति को गारंटी मिली इस बात से, जब वो तीसरे दिन जिंदा हुआ मरने के बाद, उसको गारंटी मिली इस बात से कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर है। पूरी दुनिया को, आज कायनात को बदलने वाला परमेश्वर, आज इंसान को चंगा करने वाला परमेश्वर, एक दुनिया के हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म में, हर एक संसार के अंदर लोग जानते हैं कि हम आए हैं और हमें एक दिन जाना भी पड़ेगा, हमें ये समाज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लोग हट्ठी मन के कारण परमेश्वर से वंचित रह जाते हैं। अगर आप अपने हट्ठी मन को थोड़ी देर छोड़कर एक साइड में रखकर हट्ठी मन को कि नहीं, मैंने आज बहुत कुछ मांगा है, सबसे मांगा है लेकिन नहीं मिला है, लेकिन मैं इस हट्ठी मन को छोड़कर मैं आज एक सिंपल मन से लेकर, बच्चे की तरह मन को लेकर, जैसे बच्चे को समझाते हैं, मैं आज यीशु के पास चलता हूं अपने मन को लेकर, मैं थोड़ी देर के लिए मांगता हूं, अगर मुझसे कुछ मिलता है तो मैं कुछ देखता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही हट्ठी मन में छोड़कर यीशु के पास आया, मैंने परमेश्वर को पाया और सच में मेरा जीवन बदल गया। उसी समय मुझे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने, मैंने एक ही बात कहा, परमेश्वर अगर तू है तो मैं आज तुझसे मांग रहा हूं। मैं किसी पेड़ पत्थर से नहीं मांग रहा, मैं किसी इंसान से नहीं मांग रहा हूं, मैं उस आसमान के खुदा से, उस आसमान के रब से मांग रहा हूं। वो मुझे देगा और मुझे विश्वास है कि वो मुझे देगा। और मैं ऐसा बोल रहा था, और लेकिन उसी समय क्या हो गया, जैसे ही मैंने खटखटाया, उसने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मेरे पास एक मैसेज आया, आपकी जमानत हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बोल रहा है कि आप बरी हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि सच में ये परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में एक टेस्ट लेकर आया हुआ है कि वो बोल रहा है कि यीशु मसीह को मैंने नमक बनाकर भेजा है। अगर आपका स्वाद बिगड़ चुका है, आपको डॉक्टर ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है कि तुझे कैंसर है, तुझे 5 साल का है, बच्चे को कैंसर हो गया, अगर 10 साल का है,
कैंसर हो गया, अगर 16 साल का एड्स हो गया, अगर 40 साल में आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, अगर आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगे, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, आपके आंखों के सामने कोई आशा की किरण नजर ना आए, लेकिन मैं आपको चैलेंज से बताना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं कि इस बात के लिए कि आप एक बार अपना अट्टी मन छोड़कर यीशु मसीह के पास आना, उसका टेस्ट करना। उसी समय यीशु के वचन, यीशु का वचन बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है, और वो आज भी इस कलाम से आपको आशीषित करना चाहता है। और वो कह रहा है, मेरी जुबान से बार बार कह रहा है कि जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके लिए आज खुशखबरी है। बोलते हैं कि अगर आज जमाना आपका साथ छोड़ चुका है, अगर कोई आज आपके बच्चों के साथ कोई मुसीबत आ चुकी है, कोई आपको जवाब दे चुका है, हम तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में नहीं चल सकते, अगर कोई आपके साथ मुसीबत में नहीं चल सकता, कोई आपके साथ चले ना चले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ आज यीशु मसीह चलेगा। आज आपके साथ इस सफर में यीशु मसीह चलेगा, इस मौत के सफर में, इस जिंदगी के सफर में यीशु मसीह आपके साथ वायदा कर रहा है। और वो बोल रहा है, मेरे बुजुर्गों, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, गारंटी दे रहा है। वो बोल रहा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो कहना चाहता है इस बात से, इस वचन से, कि बोलता है कि पहले तो पृथ्वी के नमक यीशु मसीह को बनाकर भेज दिया, बोलता है कि अब पृथ्वी के नमक तुम हो मेरे। और आज सच में मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने कलाम से आपको आशीष देना चाहता है, और मेरे पढ़ने से आज आपके ऊपर और सुनने से आपके ऊपर आशीष आ चुकी है। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके घर में आज धन की ब्लेसिंग और लंबी दीर्घायु की आशीष परमेश्वर दे रहा है। आमीन, आमीन। एक पास्टर जी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही, मेरे ऊपर दया कर। जब परमेश्वर ने आख्या कि मेरे ऊपर दया कर, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 20 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੇ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਏ, ਫੋਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, एंड ही नीड्स प्रेयर। अगर आप छोटी प्रार्थना उनके लिए कर दें तो धन्यवाद। ओके जी, क्या नाम है उनका? नाम ठीक है, मेरे को मालूम नहीं, पर लेकिन उसकी रिक्वेस्ट आई है, प्लीज़। कैलिफोर्निया अमेरिका में। परमेश्वर, मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, सच में उस बहन के लिए जो सच में परमेश्वर फौरन में परेशान है। पवित्र आत्मा, मैं सच में आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आज सच में परमेश्वर उसके ऊपर आ जाए और इसी समय उसकी जिंदगी संवर जाए। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है उस बहन के लिए कि सच में 3 मंथ्स के बाद उसके जीवन में एक अद्भुत काम होने वाला है, अद्भुत काम होने वाला है। मैं एक लाइट को देख रहा हूँ, यीशु मसीह की सामर्थ उसके ऊपर आ रही है और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू। ਦੋਸਤੋ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਧਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੇਕ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇੱਕ ਦਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ, ਨਿਕਲਾ दास एंड फैमिली, बेल्ट्रिक एंड मम बख्शो, जॉन मसीह विलियम सागर सन। अगर आप इनके लिए प्लीज़ अगर दुआ कर दीजिए तो दीज पीपल, और इस नाम आपको बता दिया, प्रभु इनके नाम जानते हैं, आप इनके लिए दुआ करना प्लीज़। थैंक यू। परमेश्वर मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता प्रभु जी गुरचरण के लिए और इसकी फैमिली के लिए। परमेश्वर जितने लोगों ने आज सच में परमेश्वर इस प्रोग्राम में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने के लिए सच में परमेश्वर रखा है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता प्रभु तूने उनको ब्लेस किया और रबा सना यीशु नासरी के नाम में ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाएं और आज इसी समय रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय बंधन टूट जाएं, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਕਾਲਰ। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो जमशेद अशोक जी, हाँ जेएमसी की अमरचंद बोल रहे बुलवामपुर ਤੋਂ। अमरचंद जी वेलकम एंड थैंक यू सो मच। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ठीक है, हाँ जी जरूर आपने फोन होल्ड करना। तो ऐसे वे इन सिस्टर ये प्रार्थना की जाती है। ये भाई जो उनकी मिसिस जो उसकी डॉक्टर उसकी टांग को काटने वाले हैं दो हफ्ते में, पर लेकिन खुदावंद आई बिलीव कि खुदावंद ऐसा काम कर सकता है जो डॉक्टर की समझ से भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए उसका नाम सिस्टर ज्ञानो है, ज्ञानो जी। Okay, I will pray for you. रबा सना रबा 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 सना यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय इस बहन के और टांगों के ऊपर से इसके खून में से नसों में से निकल पा यीशु मसीह के नाम में निकला 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 और लाजर को कहा निकला और निकल आया यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय और टांगों का इन्फेक्शन इसी समय नसों खून में से निकला पा यीशु के नाम में। प्रभु तेरे पाक लो में छिपा देता हूं, कैंसल करता हूं ऑपरेशन को, कैंसल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। टांग काटने की सारी दुष्ट की युक्तियां फेल हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु दया कर रहे हैं। हाँ प्रभु दया करेगा जरूर। अपने ईमान दे मजबूत रहिए, खुदा तेन बड़ी बरकत देवे। जैम से फासर जी बहुत से जो लोग हैं इंग्लैंड में भी, आप इंडिया में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जो फंसे हुए ऐसी चीज़ों से। तो आपकी मिनिस्ट्री में तो आप लोग रोज आते होंगे आपके पास दुआ कराने के लिए। कैसे लोग इंडिया में कैसा चल रहा? हर एक व्यक्ति परेशान है और लेकिन लोग इस समय इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो हर एक चीज़ को भूलकर बस वो यही चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं। लेकिन वो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस समय यीशु मसीह के नाम में बड़ा काम कर रहा है। मैंने देखा इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से आज़ाद हो रहा है, चाहे उसकी कैसी बीमारी हो। हमारे अभी गवाही आया था एक पीजीआई में, चंडीगढ़ पीजीआई बहुत मशहूर है जगह, तो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा पीजीआई गवर्नमेंट। तो वहाँ से 4 डॉक्टर मीटिंग में आए और उन्होंने देखा कि एक बच्चे को पैरालाइज था, हाथ नहीं उठता था और किसी के यहाँ गिल्टियाँ थी, गांठ थी। तो उसी समय जब प्रेयर किया यीशु मसीह के नाम से चंगाई सभा में, हीलिंग मिनिस्ट्री हमारी उधर प्रेयर किया, तो उसी समय डॉक्टर आकर बोलते हैं 4 कि हम सारी रात सो नहीं पाए, कि हम हैरान हैं, हमें सच में ये कैसे हो रहा है। हाँ, हमारे आंखों के सामने उसकी गिल्टी भागी, तो हम हैरान हैं। मतलब कि हर एक व्यक्ति परेशान है, लेकिन बस हम तो यही चाहते हैं कि परमेश्वर सबको आशीष दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम देखेंगे जो somebody's on the line, उनके वो कौन सी परेशानी से गुजर रहे हैं। हेलो कॉल है। ओके थैंक यू। हेलो जैम से कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम रॉकी फ्रांसिस है जी। सॉरी रॉकी फ्रांसिस। ओके हम क्या कर सकते हैं अपने?
जी मैं प्रे करवानी थी कि एक मेरे जॉइंट से पूरे दर्द होंगे जिन्हें जॉइंट से ना शोल्डर खाता है टखनिया है एंकल है जगह में लेफ्ट पैर छोटी जान जाए तो बहुत सारी चीज़ तो प्लीज पास्टर मैं रिक्वेस्ट करना मेरी प्रे करो please। हाँ जी पास्टर जी तेरे ने एक गल करनी चाहते हैं उन गौर देना सुनना की कहना परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप किसी सोनिया को जानते हैं, आपको याद आएगा, उसके लिए आप 3 दिन प्रेयर करो। मैं आपके पेट में, आपकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन देख रहा हूं और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि आज से 3 दिन के बाद ही आपको रिलीफ मिल रहा है। हर एक ज्वाइंट में ये एक ऐसा आपको गठिया ऐसा पूरा डालना चाहता था कोई आपको शैतान, लेकिन अभी इसी समय प्रभु आपको आजाद कराए। मैं प्रेयर कर रहा हूं आपके लिए रबा सना यीशु मसीह के नाम में। इस बहन के ऊपर से इसी समय हर एक अंधकार की दुष्शक्तियों को डांटता हूं, सिर से लेकर पांव तक हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम में हील हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर जी। मैं दसना चाहना कि ਅੱਜ इन दी मीटिंग बर्मिंघम ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ है, ਤੁਸੀਂ अगर ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲੀਏ ਆਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, जो इंसान की सोच भी नहीं होंगे प्रभु वो करता है। तो जरूर बर्मिंघम मीटिंग विंस ग्रीन मीटिंग हो रही है, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, तुम कॉन्टैक्ट कर सकते मीटिंग आइए। जो भी बीमार ने मैं सब नूं आख रहा इस वेले कि जिन्ने भी बीमार दुखी लाचार, इट्स नॉट पास्टर बजिंदर जी किसी चंगा करन जा रहे गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह होणगे जो तुहाडी लोड़ नूं जरूरत नूं वो पूरियां करन जा रहे हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून, जाना नहीं कि पास्टर जी ने फिर मुड़ के उन्होंने गल कर देंगे। पास्टर जी तुसीं दसदे कि जो वो गठिया दे लोग सी उस वेले डॉक्टर उन्होंने वेख के सुन के अपनी अखां नाल उस वेले उत्थे गिल्टियां से। अच्छा अच्छा ओके। तो देखकर वो बड़े हैरान हुए और वो उनको 4 दिन हो गए नींद नहीं आया। तो उनके पास एक पेशेंट आया कि उनकी कमर में, वो सिख फैमिली से था, कमर में उसको काफ़ी साल से परेशानी थी। तो उसको डॉक्टर उसको बोल रहा है कि ऑपरेशन भी नहीं, गारंटी नहीं दे सकते कि ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है कि इसको ऑपरेशन करने के बाद आप ठीक हो जाएं। लेकिन मैंने उसी समय महसूस किया उस बात को, क्योंकि वो जब मेरे पास आया तो उसी समय वो मेरे पास आया और जैसे ही प्रार्थना किया वो हील हो गया। और उसी समय क्या हो गया कि मैंने उससे पूछा, सब हजारों लोगों के सामने मैंने पूछा कि आप कहाँ से आई, किसने भेजा आपको? उसने कहा कि मुझे एक डॉक्टर ने भेजा है। कहता वो पीजीआई के डॉक्टर, 4 डॉक्टर यहाँ आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर हमारी दवाई तुझे लगे ना लगे कि कोई वहाँ यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, आप वहाँ जाना, वहाँ जरूर हील हो जाओगे। और उसने सबके सामने गवाही दिया। अभी हम उसको यूट्यूब पे डालने वाले हैं। परमेश्वर उसको ब्लेस करे और आप सबको भी आशीषित। थैंक यू वेरी मच सर। सारे नाल एक होर कॉलर ने उनके नाल से गल करेंगे। हेलो कॉलर। हेलो हेलो ब्रदर, माय नेम इज शफीकुल आलम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बानली। भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ आपका प्रोग्राम में, गॉड मैसेंजर जीसस क्राइस्ट दुनिया पर तो जिंदा नहीं आएगा, वो तो पैदा होएगा, और पैदा होएगा तो मैसेज आना पड़ेगा गॉड से। आप मेरा बात सुन रहे हैं? हेलो जी जी जी। अच्छा, मैं यही बोल रहा हूँ, गॉड मैसेंजर जिंदा तो नहीं आएगा। बाइबल हाँ जी, मेरे ख्याल हाँ लाइन ड्रॉप हो गई। ओके थैंक यू जी सर जी। तो फिर वो डॉक्टर ने उस मरीज को भेजा आपके पास, तो वो क्या ठीक होके चले गए? हाँ, वो ठीक हुआ। तो उसको 90% बोलता है मैं हील हो चुका हूँ, कहता है, लेकिन मैं 10% कहता है मैं अगले दिन हील इसलिए नहीं हुआ, कहता है मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया। अच्छा, तो वो बोलता है ऐसे। लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो व्यक्ति इस बात को जान चुका है कि यीशु मसीह ने मुझे ब्लेस किया है। और वो बोल रहा था इस बात को कि मैं सच में डॉक्टर के सामने भी गवाही दे सकता हूं, मैं दुनिया के सामने भी गवाही दे सकता हूं। लेकिन वो इस बात की खोज में लगा हुआ था कि ये सच्चाई है क्या। तो वो बड़ा शॉर्ट था इस बात से, तो उसको काफी हैरानगी हुई। ओके, हम देखते हैं हमारे साथ दूसरा कौन है लाइन पे। हेलो 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 जैमसी दी। हाँ जी, जैमसी की सिस्टर कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए। पास्टर अशोक जी, मैं जोसेफिन बोल रही हूँ तो फेल्थम तो साउथ हॉल तो नहीं, फेल्थम तो पास्टर जी। अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ जी, और
बहुत अच्छा प्रोग्राम है पास्टर जी, खुदावन तुहानू बहुत आशीष बरकत देवे। और ब्रदर पास्टर बलजिंदर जी ਨੂੰ बहुत बहुत वेलकम ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, थैंक यू ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਏ, ईमान की मजबूती ठीक है। ओके सिस्टर, आप ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਫੋਨ ਰੱਖੀਏ। पास्टर जी तेरे लिए, तेरी फैमिली लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि खुदावंद इनको और भी मजबूत करे। ठीक है पास्टर जी, मेरे मम्मी डैडी होना लिए भी प्रार्थना प्लीज करियो इंडिया में। जय मसीह की। ओके, थैंक यू। जरूर जरूर सर जी। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ पिता, सच में जिंदा परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर है। और इसी समय इस बहन की रिक्वेस्ट को प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय ये दया वाला अभिषेक जो सच में तेरे पास है, सामर्थ से भरा हाथ आज इस बहन के ऊपर आ जाए और बढ़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़ा भारी अभिषेक इनके घर में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रभु इनकी जिंदगियों को तू सवार दे और ज्यादा ब्लेसिंग में भरते चले जाए। और सच में पवित्र आत्मा जी, सच में इस बहन की जो इच्छा है मेरे पिता पूरी करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। साल एक और कॉलर दे उनसे गल करेंगे। हेलो कॉलर। हेलो हेलो जी। हाँ जी, अपना नाम दसिए, कौन तो कितने बोल रहे हो? मेरा नाम रमीला है, मैं लंदन से बोल रही। जी मेरा नाम रमीला है, लंदन से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए, क्या क्या हम आप लिए कर सकते? मेरी प्रॉब्लम है वो एलर्जी और ब्लैक डार्क हो गई मेरी स्किन पर। हाँ, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मैं अभी कुछ आपके राइट साइड में कुछ इन्फेक्शन देख रहा हूँ और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप आज ही इसी समय हील हो रहे हैं। अभी आपको प्रभु स्पर्श कर रहा है। एक तेल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके घर में जहां भी पड़ा है अभी इसी समय उसको लगाना। यीशु मसीह के लहू को मिला देता हूँ उस तेल में यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। आप इसी टीवी पर गवाही देंगे, आपको इन्फेक्शन से आजाद कर दिया परमेश्वर ने, आमीन। हाँ सिस्टर, अपना नंबर स्टूडियो ਵਿੱਚ अपना नंबर लिखा दीजिए तो तेरना फिर मैं बाद में गल करांगे। ठीक है, प्रभु खुदा आपको बहुत सी बरकत दे। थैंक यू सो मच जी। सर जी, आखिर ਵਿੱਚ लास्ट में ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जो सारे व्यूअर्स ऐसे देख रहे हैं, ਲੱਖਾਂ लोग ਤੈਨੂੰ देख रहे थे इस प्रोग्राम में, आप उनको क्या संदेश देना मांग रहे हैं? मैं सारी दुनिया को एक ही सबूत देना चाहता हूं कि हमारे भारत में एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं और मैं आपके सामने बैठा हूं इस टीवी के कि जिसके घर में दुख है वही जानता है कि दुख क्या है। लेकिन सच में परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर होता है जो चाहते हैं। अगर आज आप चाहेंगे तो होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि अंधे भिखारी को बाइबल में यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, बोल तू क्या चाहता है। और वो आसमान का खुदा जानता है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। लेकिन परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के सामने जाकर जब घुटने टेक कर प्रार्थनाएं करता है, किसी भी तरीके से वो प्रार्थना करता है, तो उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो सुबह उठकर परमेश्वर से एक बातचीत करे और वो ये कहे कि परमेश्वर आज तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, तू क्या चाहता है, मेरे जीवन से तू क्या चाहता है। आप पहले ये पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। आमीन आमीन। दोस्तों भैन ते भाई, साडा वक्त इत्थे खत्म होंदा जा रहा है। अगर तुसीं ज़्यादा प्रार्थना दे विच जाना चाहुंदे, प्रार्थना कराउणी चाहुंदे है तो तुसीं जरूर जो बर्मिंघम दे विच आज शाम ਨੂੰ मीटिंग हो रही है, मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 6 बजे समय 9 बजे तक चलेगी। तुसीं जरूर आइए। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे लिए तुसीं स्टूडियो जो नंबर आ रहा है तुसीं फोन करिए और तेरे जरूर दुआ प्रार्थना की जाएगी। अज खुदाबंद तेन बदल रहा है, तेन आज़ाद करने जा रहा है, तो प्लीज़ अपना वक्त ना जाया करिए। कम एंड जॉइन इस विद अस। ओके, खुदाबंद तेन बड़ी बरकत देवे। अगले हफ्ते इसी स्टूडियो फिर तेरे मुलाकात होगी। सारे सारे वालों तेन जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।
hands.